सेंसर बोर्ड के हाथों में जो ताकत है। There is nothing called as censor board in this country. It is CBFC. So उनका काम होता है कि फिल्म को सर्टिफिकेट देना, ना कि उनको सेंसर करना। उड़ता पंजाब में कुछ approximately 84 cuts सजेस्ट किए गए थे. The filmmakers went to Bombay High Court and they said that these cuts are very unnecessary and they suggested only one cut, which was गुलामगिरी करके एक वर्ड है, which is slavery, वो निकालो। अब ये गुलामगिरी वर्ड निकाल के आप कैसे महात्मा फुले की स्टोरी बता सकते हो? आई हैव दिस बुक ओवर हियर. द नेम ऑफ द बुक इज गुलामगिरी, विच इज रिटन बाय महात्मा ज्योतिराव फुले. अगर ये मूवी महात्मा ज्योतिराव फुले के ऊपर है और सावित्रीबाई फुले के ऊपर है और उनके ही वर्ड्स अगर आप उस मूवी में नहीं इस्तेमाल कर सकते हो तो फिर क्या कर सकते हो? बस अस्त्र शस्त्र नहीं उठ रहे, वरना जंग तो कचहरी में ही लड़ी जाती है। जस्ट बिकॉज आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप सेडिशियस हो। They say judiciary is the guardian of civilized society. कानून व्यवस्था अगर एक नागरिक का हक है, मैं कहता हूं किसी हद तक उसका प्रिविलेज भी है। क्योंकि जरा सोचिए ना, भले ही हम उसे कितना भी कोसें, अगर ये कानून व्यवस्था ना हो तो एक सिविल सोसाइटी को जंगल राज बनने में कितनी देर लगेगी। जुडिशरी वॉज ऑलवेज मेंट टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल्स राइट। लेकिन जो चीज आपकी प्रोटेक्टर हो, जो आपका रक्षक हो, उससे आपको इतना डर क्यों लगता है? क्यों लोग कहते हैं कि यार कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा। और आज के जमाने में, यानी ये साइबर क्राइम के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, डिजिटल फ्रॉड्स के जमाने में, क्या हमारा ये जुडिशियल सिस्टम इन नए चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है? इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे बीच में एक वेरी कूल मुंबई बेस्ड एडवोकेट लॉयर, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, her name is Dipadnya Valanj. She has been working in indirect taxations, property and family law, corporate commercial litigation, startup compliance. Well, of course, she is a TEDx speaker and LinkedIn की top voice कहलाती हैं. And the most amazing part is she has chosen LinkedIn to be her source and the medium जहां पर वो अपने आप को व्यक्त कर रही हैं. And वहां पर उनको ना केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के legal experts भी follow करना शुरू कर चुके हैं. Dipadnya, welcome to What's Your Mantra? Thank you so much. Thank you for having me here, Mantra. Dipadnya, you also been a judicial intern for some of the sitting Bombay High Court judges. So you hang with only the big wigs, huh? So to say. But Dipadnya, you were just telling me that it is not so easy to reach that position of a high court judge. मतलब अलग-अलग तरीके रहते हैं for these judges to become who they become. Yes. So there are two ways in which you can become a high court judge in this country. One is through elevation. So if you're a very good lawyer having a very good practice in the Bombay High Court, obviously there is an eligibility criteria. Apart from that, if the collegium system notices you, then they can recommend you, and then it is your call if you want to accept that recommendation. बहुत बार ऐसा होता है कि जो जजेस की सैलरी होती है उसमें और एक अच्छे खासे काउंसिल की जो पर मंथ इनकम होती है उस पर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी होती है. फॉर एग्जांपल, अगर एक जज की सैलरी मान लो 5 से 6 लाख के बीच में, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई एम गिविंग, देयर आर सो मेनी काउंसिल्स इन द बॉम्बे हाई कोर्ट हु आर अर्निंग मच मोर देन दैट. For them to do away with it and to choose a judgeship is also an economic factor also comes into picture. So there have been instances wherein people have declined judgeship for various reasons, and this can be one of the reasons for that. So do you aspire to be one yourself one day? Are we seeing a future high court judge? I don't think so. I'm just working. I'm taking baby steps. Whatever happens will happen for the best. This podcast can age well in the next couple of years if you ever hear Dipadnya Valanj, who is now a high court judge because she's been working very hard from a very young age. Dipadnya, you've been dealing with a lot of legal firms and a lot of national and international cases. Do you think the times are changing for the Indian legal system also to adapt, because तेजी से system बदलता जा रहा है? You know what is happening in the digital world. Is the Indian judiciary system also updating itself with what is happening around? Okay, one thing that we need to understand that Indian judiciary works in a very traditional manner. The procedure that we follow is somewhat a colonial procedure, etc. But when it comes to application of law,
I think judges are well equipped with the ongoing system. There was one judgment by Uttarakhand High Court which actually relied on AI to draft that particular judgment. That was an exercise which was carried out. So I think yes, in terms of inculcating AI, in terms of updating with IT laws, etc., the judges are also self-learning. They are also, getting into the shoes of the younger generation and trying to understand as to how this procedure works. And even मतलब if we, मतलब yes, जजेस भी चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं? I will not say chat GPT, but maybe they must have used some or the other form of AI. बट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दिपात्या Yes. व्हिच यू सेड दैट हमारे इंडियन जुडिशरी लॉज जो हैं वो अभी भी कॉलोनियल एरा में ही फंसे हुए हैं उनको जिस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीड्राफ्ट नहीं कर सकते या कर सकते हैं उसी तरीके से आप क्या लॉज को भी रीड्राफ्ट या अडेप्ट नहीं कर सकते? कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आप हाथ नहीं लगा सकते हो. ओके, बट लॉज को आप रीड्राफ्ट कर सकते हैं. आई कैन नॉट से दैट ये जुडिशरी फंसी हुई है. द प्रोसीजर वाज लेड वे बैक, आई थिंक इन 1800 समवेयर, एंड दैट इज गुड इनफ फॉर अस. आवर जुडिशरी इज रनिंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ दैट प्रोसीजर. And if you bring in new procedure, that can create confusion, chaos, so on and so forth, and then it takes a lot of time to adapt, and it takes a lot of time for that procedure to reach to the last strata of the society, to the last possible person in the society. So even that can take a lot of time. So jaisa chal raha hai, it's good. But yes, in terms of delays in court procedures or in terms of delays in court orders, etc., we can do better. I'm sure. I'm Yes. sure. वैसे भी we as a society are pretty used to following books Yes. that are written hundreds and thousands of years ago and following them blindly. I'm Yeah. sure you understand what we are trying to say. One more interesting thing that you should know is outside Bombay High Court, just like any sports stadium, we have a screen which states how many cases were heard today, what is the backlog of that particular court. So it is there in public domain, just like you may have in front of a Wankhede stadium, what is the score अरे of the वाह! match. So that is very much in public domain. So judges and the court system is also trying best to be as transparent as possible. Dipadne, is it fun to be a lawyer? मतलब how's a work Yes. life for a lawyer like? हम लोग तो फिल्मों में ही देखते हैं ऑर्डर Yes. ऑर्डर ऑर्डर, मतलब वैसे ही होता है सेम? लॉयर्स दो तरीके के होते हैं. एक तो लिटिगेशन करते हैं, मतलब जो वकालत करते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, आई एम अ लिटिगेशन बेस्ड लॉयर. You meet new people every day, you come across new challenges every day, and law is a very vast umbrella. You may not know about each and every law, so you are challenging yourself every day. One more interesting thing is, I suppose this is the only profession in the world wherein you prepare something and the other party is preparing to defeat you. That happens only in war and in law. So I think in that sense it is very interesting. बस अस्त्र शस्त्र नहीं उठ रहे Yes. वरना जंग तो कचहरी में ही लड़ी जाती है. Yes. बहुत खूब, बहुत खूब. बट आजकल तो जंग कचहरी से बाहर निकलकर सोशल मीडिया पर आ गई है दीपान्या. जो पब्लिक ट्रायल्स हम देख रहे हैं, केस इससे पहले कि कोर्ट तक पहुंचे, कोई जजमेंट आए, पब्लिक अपना जजमेंट सुना चुकी होती है और सजा भी सुना चुकी होती है. आई एम श्योर कि इससे असर जरूर पड़ता होगा क्रिमिनल केस के ऊपर या केसेस के ऊपर, बट डू यू थिंक इट एक्चुअली चेंजेस द जजमेंट? I don't think it changes the judgment at all. इसके हमारे पास काफ़ी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं. अगर पॉपुलर एग्जाम्पल्स देखा जाए तो वन एग्जाम्पल इज़ ऑफ रिया चक्रवर्ती. विच हंट इज़ द वर्ड दैट आई वुड लाइक टू यूज़ ओवर हियर. जो विच हंट को उनको सब्जेक्ट किया गया था, जिस तरीके की लैंग्वेज उनके लिए यूज़ की गई थी, एंड एट द एंड ऑफ द डे हर न्यूज़ डिबेट में हर जगह पे उनको गुनहगार घोषित कर दिया था. एंड रिसेंटली शी गॉट एक्विटेड. एंड शी गॉट एक्विटेड. जो सीबीआई की रिपोर्ट आई है उसमें बोला गया है कि ये सुशांत सिंह राजपूत जो है, ही डाइड बिकॉज ऑफ सुसाइड, एंड रिया चक्रवर्ती हैड नो रोल टू प्ले इन इट. So, for all these years, a young girl was subjected to public harassment, abuses left, right, and center, witch hunt, as you said, for nothing, and For nothing. nobody's accountable for that. Of course, she can approach the court again for her remedies, but there is something called as litigation fatigue, and also there can be something called as media trial fatigue. So I'm sure nobody wants to get into it, and I'm sure she also wants to just get yes, out of that and say that I'm out of this thing. But for all those people who did it for all these years, they can just be sitting out there and nothing's going to happen because the case has moved on. the case has moved on. That is the sad reality of media trials that we are facing today. What are the other cases?
आज से कई सालों पहले आरुषि हत्याकांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यस, आरुषि हत्याकांड इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट मीडिया ट्रायल्स, क्योंकि वो सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन तक सीमित नहीं था। टेलीविजन स्क्रीन पे जो मीडिया ट्रायल हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन क्राइम सीन तक सारे मीडिया रिपोर्टर्स पहुंच गए थे। वो क्राइम सीन को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया गया था। जो डॉक्यूमेंट्रीज आई सामने कई सालों बाद, इवन जो शम्स ताहिर खान करके रिपोर्टर है, इज़ वेरी फेमस जी, जी। क्रिमिनल लॉ में जो बिल्कुल। सॉरी क्रिमिनल केसेस में जो रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी कहा गया था कि क्राइम सीन कंटामिनेट हो गया था बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो मीडिया ट्रायल के वजह से आपने सिर्फ एक गलत वर्डिक्ट ही नहीं दिया, आपने जाकर बाकायदा वहाँ पे जो एविडेंस मिल सकते थे उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई है। तो मतलब मीडिया ट्रायल कितना एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है एक केस को, ये आरुषि हत्याकांड से हमें पता चलता है। और इसके अंदर रिया चक्रवर्ती सुशांत राजपूत केस के अंदर जिस प्रकार जनता यस, अकाउंटेबल ना हुई, उन्होंने जो मन में आया बोला और उसके बाद आज वो अकाउंटेबल नहीं है। मीडिया कर्मी भी अकाउंटेबल नहीं कहलाए इसके बाद में। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिपोर्टर्स हु रीच क्राइम साइट्स एंड एक्चुअली एक्सपोज अ सिस्टम व्हिच दे शुड नॉट बी। यस, रिसेंटली अगेन देयर हैज बीन डिस्कशन अबाउट पहलगाम में, जहां पर सिक्योरिटी सिस्टम्स को बकायदा रिपोर्टर्स अपने कैमरा में कैद करके दिखा दे रहे हैं, समथिंग व्हिच इज नेशनल सिक्योरिटी। एंड आपने 26/11 के टाइम पर भी सेम टू सेम केस देखा था, जब एक मीडिया कर्मी द्वारा यस, जो हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा प्लान जो था उसको एक्सपोज कर दिया गया, जिसके कारण द टेररिस्ट्स वेंट अहेड एंड कॉज्ड सो मच हार्म। दीज मीडिया कर्मीज आल्सो, इनको भी अकाउंटेबिलिटी इनके ऊपर नहीं होती कोई? see, I think this is a question more of a reform. Okay, there should be a reform. Even media journalists or whosoever comes under, because media has become a very vast this thing comes under that particular umbrella, should be sensitive towards the issue, and they should be accountable, I mean held accountable towards that particular issue. Even if we do not have a direct law, lawyers are very smart. If they want, they can do anything that is possible. So if you want to hold someone accountable for this particular thing, they can be held accountable. But media industry or news channels are such big giants, so to fight a case against such big giants becomes a problem. जहाँ एक तरफ मीडिया ट्रायल्स के Yes, डिसएडवांटेजेस हमने देखे हैं, जहाँ पे रिया चक्रवर्ती को इतने साल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, या आरुषि हत्याकांड के अंदर मीडिया के पहुंच जाने के कारण जो क्राइम सीन था वो कंटामिनेट हुआ था, वहीं एक मीडिया ट्रायल या पब्लिक आक्रोश से रिफॉर्म्स भी हुए हैं, जैसे कि निर्भया केस में देखने को मिला था। yes, वहाँ पर जो एंगर पूरे समाज में था, जो आक्रोश समाज में था, जिस किस्म का घिनौना क्राइम हुआ था, उससे जो फ़र्क पड़ा, आपको लगता है एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स गेटिंग समवन जस्टिस? it actually worked towards getting someone justice. It was a very unfortunate case which brought some good reforms, but at what cost? Okay, so if our system was good enough even before that, आज हमें वो दिन नहीं देखना पड़ता था। निर्भया केस के वजह से तो ज़रूर हमें कुछ अच्छे रिफॉर्म्स देखने मिले हैं, स्पेशली जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंतर्गत। अगर आपको पता होगा कि एक उसमें जो कन्विक्टेड था, ही वॉज क्लोज टू 16 और 18 ईयर्स जी, ओल्ड, जी। बट येट ही वॉज गिवन द सेम पनिशमेंट एट द एंड। सो आई थिंक कुछ अच्छे रिफॉर्म्स भी हुए हैं, बट अच्छा इज ऑल्सो सब्जेक्टिव टर्म in that sense. That's true. That's true. If we move towards another section in the society, दीपात्न्या, जिस प्रकार फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आजकल काफी चर्चा हो रही है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का बेंचमार्क क्या है, इसका थ्रेशहोल्ड क्या है, कितनी फ्रीडम दी जानी चाहिए किसी एक इंडिविजुअल को। सबसे बड़ा केस है रिसेंटली विद कुणाल कामरा, जो उन्होंने अपने एक शो के अंदर अपना एक कुछ कंटेंट प्रेजेंट किया था, जिसके कारण आपको अच्छी तरीके से मालूम है क्या कुछ हुआ। वो सामने वाला जिसने कंटेंट प्रेजेंट किया था वो तो गायब हो गया, लेकिन जो जिस वेन्यू पे हुआ था उस वेन्यू को तोड़ दिया गया। उस वेन्यू की जहां पर शायद कोई गलती नहीं थी या थी, क्या लीगल तरीकों से उस वेन्यू को नहीं बचाया जा सकता था? डज दैट वेन्यू डज नॉट हैव एनी राइट्स? एंड कुणाल कामरा's content, do you think it surpassed freedom of speech, or do you think it was something that could have been handled in a different way? Okay, this is a very interesting case. Kunal Kamra, in his own words, have earlier said, even before this particular show, that whenever he wants to conduct a show in Gujarat or say some of the particular states in India,
the police officers from that particular venue or nearby venue calls him up and tells him that take all the precautions possible, because we think because of your show there can be something, some unlawful activity that can be taken place. Kunal Kamra's stand in this particular instance was, why are you calling me? If you think that someone is going to vandalize this particular venue, you should actually contact those people. Who should be held accountable? Is it the artist or the people who are going to come and vandalize, or people who have a criminal intention in this particular case? So I think we should divert our our police officers, our judicial system should divert their attention towards protecting the artist, rather than giving them a warning, saying that if you come here, an unlawful activity can happen, someone can vandalize this thing because what you are saying may not be in lines with what they think, with their morality, with their this, with their that, etc. But that is not the right way. You cannot blame the artist. You should blame the people who are vandalizing the venue. Ulta chor kotwal ko Yes. डांटे is the other way around. There was another very interesting case. Imran Pratapgarhi के बारे में बताइए. What was the case over there? इमरान प्रतापगढ़ी जो है एक कांग्रेस के पॉलिटिशियन है. उन्होंने एक पोएम लिखी थी. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएम, बट इट सेड खून के प्यासों से समथिंग समथिंग, which was actually criticizing the government at that point of time. उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होता है जिसपे सीडिशन से लेके जो देशद्रोह का आरोप है, विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिमिनल एलिगेशन दैट कैन बी लेड अपॉन एनीवन इन दिस कंट्री, वो लगाया जाता है एटसेट्रा. और फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं एफआईआर क्वॉश करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट बाकायदा कहती है कि ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है. जस्ट बिकॉज आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिडिशियस हो इन नेचर. So that is a very important case, and it's a recent case which gives us a lot of hope when it comes to artists and protection of artists from what they're saying. So there is, I mean, all said and done, it is our right, freedom of speech. But is there a duty also attached to it ki you should not be offending the majority or a system that provides you that freedom of speech? Is there one? I mean, I'm just talking. No, I think something which is morally not correct, something which can invoke violence in the society should be avoided. Okay, so for example, you cannot give hate speech, which politicians in today's day and age, they use it left, right and center, but we don't see their venues getting vandalized. I'm not saying that their venues should be vandalized, but we don't see any strict action that is taken on them. But if Kunal Kamra comes and cracks up a joke or uses satire for his particular this thing, he is then subjected Well to said, the Dipanya. Very well said. अपने गिरबान में झांक कर देखना भी उतना ज्यादा जरूरी है. Very, very, very well said. आजकल जो आर्टिस्ट है, द आर्टिस्ट कम्युनिटी काफी डरा हुआ है. डर का माहौल है. मे दैट बी अ फिल्म मेकर जो शायद अपनी इतनी शिद्दत से फिल्म बनाता है और उसके बाद उसकी फिल्म की रिलीज को रोक दिया जाता है. मे दैट बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन जो शायद कुछ सटायर करता है और उस सटायर को लोग इतना दिल पे ले लेते हैं कि ना केवल उस पर केस हो जाता है, थ्रेट्स उसको मिलने लगते हैं और उसकी फैमिली को थ्रेट्स मिलने लगते हैं, बल्कि साथ ही साथ वेन्यू भी वैंडलाइज होता है. द आर्टिस्ट कम्युनिटी हैज ऑलवेज बीन अ सॉफ्ट टारगेट, इजंट इट? See, I think artist community in India, at least, they do not speak up against the wrongs that have been levied upon them by different parts of the society, not just government. For example, if you see in Hollywood, okay, there are a lot of shows like the Jimmy Kimmel show, etc. They are very vocal about their political opinions, whatever it may be. They're very vocal about injustice that is happening in the country, okay, and that is how it is promoted, and that is also a part of educating people in a way. Yeah. If The you American are Tonight shows Yes. are very, very politically motivated. Yes. We don't have any of those shows. We do not have any of those shows. If the artist community decides that we are here to take a stand, we are here to speak up our minds, and because our constitution guarantees us that we will not succumb to anything, I think that can, I don't think that will solve the problem, but that can really help the problem. But in that case, you're actually saying America is a much more liberal and a progressive mindset as far as society is concerned, कि वहां पर वो करने देते हैं. If a Jimmy Fallon goes ahead and does this thing and he's still surviving, or anybody else who does that, यहाँ पर शायद वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा. कुणाल कामरा की केस देखा जाए तो I think less said is better. Well said on that. When it comes to movies, दीपान्या, जैसे अभी फूले मूवी की बात करते हैं, जिस तरीके से इस मूवी को रोक दिया गया, उसके कंटेंट से
शायद घबराकर। सेंसर बोर्ड के हाथों में जो ताकत है, what kind of a mindset do they come from? Do they think that the people are not ready to accept this reality, or are they doing it because they do not want more problems in the society? Okay, please allow me to correct you. Mhm. There is nothing called a censor board in this country. Okay, it is CBFC, which is Central Board for Film Certification. Mhm. So उनका काम होता है कि फिल्म को सर्टिफिकेट देना, ना कि उनको सेंसर करना। जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट है हमारी कंट्री में, उनको कुछ पावर्स देता है कि अगर कुछ सीन्स है जो वायलेंस को इन्वोक करते हैं, जो इस कंट्री के मोरालिटी के साथ अलाइन नहीं होते हैं, तो वो कुछ कट्स सुझा सकता है। अगर आपने उनके जो भी निर्देश है, जो भी सजेशंस है, उनका पालन नहीं किया, तो आप वो फिल्म रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दैट इज वेयर द कॉम्प्लेक्सिटी लाइज। ओके, आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन इन टू पार्ट्स। लेट्स फर्स्ट गेट इनटू द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। जी। If the CBFC tells you, these are the things which you should not keep in this movie or change it, this, that, etc., you can always go to the appellate authority. ओके, और आप अपील कर सकते हैं दैट आई एम नॉट हैप्पी विद CBFC's डिसीजन। अगर वहाँ पे अगर हार जाते हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ओके, एंड अ वेरी गुड एग्जांपल इन दिस इज ऑफ उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब में कुछ अप्रोक्सीमेटली 84 कट्स सजेस्ट किए गए थे। द फिल्म मेकर्स वेंट टू बॉम्बे हाई कोर्ट, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो विच हाई कोर्ट, बट दे वेंट टू सम हाई कोर्ट एंड दे सेड दैट these cuts are very unnecessary and they suggested only one cut, which was I think we all know which cut was that. They got justice in it. In 84 cuts and one cut में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो शायद ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे एग्जाम्पल्स है जो जुडिशरी ने उस मूवी को बचाया है। तो अगर CBFC जैसा कोई बॉडी है तो ऑब्वियसली अपने पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है जो आपको बचा सकता है। But at the same time, Yes. Dipatna, I'm sure you agree that cinema has an impact on people. Yes. And we know recently, छावा के रिलीज होने के बाद पूरे हिंदुस्तान भर में क्या हुआ, एंड दैट मूवी वाज रिलीज्ड। क्या ये बोर्ड ने उस चीज पर उस नजर नहीं रखी होगी? उनको लगा नहीं था कि इससे इस प्रकार का एक इमोशन जाग जाएगा समाज में? मुझे नहीं लगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो, बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज पे, छत्रपति संभाजी महाराज पे बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है या मिडिवल टाइम से जो राजा रानी जो भी कुछ है, उनके ऊपर बहुत सारे पीरियड ड्रामाज इस कंट्री में बन चुके हैं। वी आर नॉट न्यू टू दिस। उसके बाद कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो आई थिंक कि CBFC ने ऐसा कुछ एप्रीहेंड नहीं किया होगा। कमिंग बैक टू योर फुले क्वेश्चन, आई लाइक टू एड्रेस इट। 2019 में एक मूवी आती है कॉल्ड आनंदीबाई जोशी, which was on India's first female doctor. She was also subjected to the same kind of obstruction which सावित्रीबाई फुले was subjected to. होता ये है कि जब फुले मूवी का ट्रेलर आता है तो उसमें एक ऐसा सीन आता है where she is restricted from going to the school और उनके ऊपर गोबर फेंका जाता है। Similarly, parallel, similar scene is shown in आनंदीबाई जोशी मूवी। जब वो पढ़ने जा रही है तो उनके ऊपर कचरा फेंका जा रहा है। तो जो प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर आक्षेप लगाया, उनका मेन मुद्दा यही था कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंसान को दिखा रहे हो जो सावित्रीबाई फुले को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है जाने के लिए। ओके, बट मेरा ये कहना है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप रेस का जिक्र किए बिना क्या स्लेवरी की स्टोरी बता सकते हो? जी नहीं बता सकते हो। क्या आप विलन का जिक्र किए बिना एक हीरो की स्टोरी बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो उस मूवी में हर एक एलिमेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर काफ़ी सारे कट्स उसमें सुझाए गए कि गुलामगिरी करके एक वर्ड है विच इज स्लेवरी, वो निकालो। अब ये गुलामगिरी वर्ड निकाल के आप कैसे महात्मा फुले की स्टोरी बता सकते हो? I have this book over here. The name of the book is गुलामगिरी, which is written by महात्मा ज्योतिराव फुले। अगर ये मूवी महात्मा ज्योतिराव फुले के ऊपर है और सावित्रीबाई फुले के ऊपर है और उनके ही वर्ड्स अगर आप उस मूवी में नहीं इस्तेमाल कर सकते हो तो फिर क्या कर सकते हो? मतलब I mean, if you cannot use the exact words which were used by that particular person, तो क्या आप डाइल्यूशन किस हद तक जस्टिफाई कर सकते हो? मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में अगर ये सारे जो कट्स है उनको लेकर अगर वो अपील करते थे, अगर वो हाई कोर्ट में जाते थे तो शायद उनके केस में कोई मेरिट होता था। बट अगेन, filmmakers don't want to wait. Obviously, the more you wait, the manner in which your movie looks also changes. True. And all of those. And it gets expensive. It gets expensive. एक तो पहले ही यहाँ पर the filmmakers are going in a slump to be actually going through such a problem. इसीलिए वो लोग कहते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ना चाहिए.
दीपान्या, ये तो रहे केसेस जो कि शहरों के केसेस हुए, सोशल मीडिया तक पहुँचने वाले एलीट केसेस। जहाँ पर बात आती है भारतवर्ष के गाँव-खेड़ों की, जहाँ पर न जाने कितने ही केसेस आज भी कोर्ट के चक्कर काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। You've actually been you've specialized and you work towards the rural sector also. What kind of a judiciary system हमारे गाँव-खेड़ों में देखने को मिलता है? क्या वहाँ पे मीडिएशन का बड़ा हाथ रहता है? क्या आज भी वहाँ पर सरपंच लोग ही अपना जजमेंट सुना देते हैं और कोर्ट तक की बात नहीं पहुँचती? कैसा सिस्टम चलता है वहाँ पे? ओके। सो जुडिशरी जो है क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एक ही जगह पे लोकेटेड है। अगर आप समझो किसी रूरल एरिया में बेस्ड हो और खुदा ना खास्ता आपकी केस हाई कोर्ट तक जाती है और आपको सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगानी है, हुँ, क्या एक केरला में बैठा हुआ इंसान दिल्ली तक जाके उसके केस सही लड़ बात। सकता है हुँ, सुप्रीम कोर्ट में? हुँ, ठीक है। तो जो एक्सेसिबिलिटी है, पूरी दुनिया आजकल इंक्लूसिविटी एक्सेसिबिलिटी की बात कर रही है, हुँ, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिबिलिटी इन जुडिशरी वी आर वे बिहाइंड। हुँ, ओके। हुँ, हुँ, सो कुछ ना कुछ तो रेमेडी होना चाहिए कि हर एक इंसान, सोसाइटी का हर एक तबका वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक जा सके। जब तक ट्रायल कोर्ट्स की बात आती है, हमने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। वी हैव लोक अदालत्स, वी हैव वेरियस लीगल एड कमिटीज, लीगल एड रिफॉर्म्स which are there in this country, legal aid groups which are helping rural population to get access to trial court judges, trial court, I mean to file their cases in trial court, etc. There we are doing a bit हुँ, better हुँ, is हुँ, what हुँ। I think. What problems that we face is, अब किसी भी कचहरी में जाइए इंडिया के, उधर एक मीडिएशन का एक पोस्टर लगा हुआ रहता है हुँ, हुँ। कि कोर्ट कचहरी की चक्कर मत काटो, मीडिएशन कर लो। मीडिएशन के लिए लोगों को बहुत मतलब समझाने की कोशिश की जाती है वगैरह। काउंसलिंग इन अ वे, हाँ, काउंसलिंग इन अ वे। मुंबई भाषा में मांडवली। लेकिन आप कह ओके। रही हैं and it is true also यस, because the Indian judiciary system is already overloaded. They यस। do not want additional cases which can already be solved by mediation. यस। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो एक जनरेशनल हेट्रेड की है। ये जो जनरेशनल हेट्रेड करके एक टर्म है, वो आज के बाद सब लोगों ने आई थिंक समझना चाहिए, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली हम हमारे फैमिलीज़ में ही जो एनिमोसिटी है उसको दूसरे जनरेशन तक कैसे लेके जाए, उसका हम लोग प्राविधान पहले से ही कर लेते हैं कि अगर आपके किसी चाचा ने आपके साथ कुछ किया हो, आपकी ज़मीन हड़प ली हो, आपको कोई जस्टिस ना दिया हो, कुछ हो गया हो, तो आप उनको बताते हो बच्चों को, पता है आपके चाचा ने ये किया था, पता है आपकी बुआ ने हमको ऐसे तंग किया था। नाउ as children you don't understand the gravity of the situation, but you only understand कि हमारे पेरेंट्स के साथ कुछ गलत हुआ है, and that leaves a very big impact which becomes very difficult to solve later on in life. Okay, so when it comes to mediation, आपको दो कदम पीछे जाना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि ग्रेटर गुड क्या है, ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर बचपन से आपके मन में इतना हेट्रेड अगर भर के रखा हो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। सो एज वी नो इन गैंग्स ऑफ वासेपुर आल्सो वी से बाप का भाई का सबका बदला लेगा। सो वी हैव टू डू अवे विद दिस बदले की भावना फ्रॉम अस टू गेट इनटू मीडिएशन और थिंग्स लाइक दैट। और ऐसे बहुत केसेस हैं हिंदुस्तान के रूरल सेक्टर्स में। रूरल सेक्टर्स में क्यों जाए, हम लोग अभी देखा था अभिनव लोधा और अभिषेक लोधा का जो केस था, जी। जिसमें लोधा ब्रदर्स का फाइट था फॉर 5000 सीआर का, जिसमें कॉम्पनसेशन मांगा गया था। वो केस बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीडिएशन के लिए भेजा, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसको मीडिएट किया एंड दैट केस वाज रिजॉल्व्ड। अगर एक 5000 सीआर वैल्यू का अगर केस रिजॉल्व हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा होप है, और ये केस के बारे में रूरल इंडिया में सबको जाके अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है कि ये 2 भाई थे, इनका इतना बड़ा क्लेम था, उनके पास बहुत पैसे थे कि वो कोर्ट कचहरी सब कुछ कर सके, लेकिन उन्होंने मीडिएशन चुना और वो मैटर उन्होंने सॉल्व किया। So this mediation should be used. It will यस, actually help not only the people but also the Indian judiciary system जो already overloaded है वेरी with वेल। immense cases that go across. यस, Wonderful. And uh, मैं रूरल सेक्टर्स की बात कर रहा था। सो देश का जो देश का जो बैकबोन कहलाया जाता है, एग्रीकल्चरल जोन जिसको कहा जाता है, एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसको कहा जाता है हेम्प फार्मिंग, कैनबिस फार्मिंग, जिसके ऊपर हमेशा से एक बैन लगा हुआ है। हालांकि इट्स अ लिटिल डाइसी व्हाट द सिचुएशन ओवर देयर इज, क्योंकि कैनबिस यानी कि
गांजा जिसे कहा जाता है, उसको एनडीपीएस एक्ट के अंडर डाला गया है, जिसके चलते कैनबिस फार्मिंग के ऊपर अंकुश लगा रहता है। कई जगहों पर मैंने इतना पढ़ा ज़रूर है कि फार्मिंग इवन इफ इट्स पॉसिबल फॉर कन्वर्जन इनटू हेम्प और समथिंग, उसका सेल इज़ नॉट पॉसिबल। कहीं न कहीं पे वो अंकुश लग जाता है उस पे। Cannabis being in the NDPS Act, what is the situation currently right now? And do you see after all these litigations that have been filed, कई बार कई सारी आवाजें उठाई गई हैं, papers submit किए गए हैं, will cannabis ever be legal in India? Okay. When we talk about cannabis in India, it somehow becomes a morality issue. It is very important that we do away with the morality lens and look at it from a very technical perspective. In 6000 BC, etc., in India, we have a lot of literature which talks about cannabis. Okay. Then after British invasion in India, okay, there was a committee called as Hemp Cultivation Committee, if I'm not mistaken. Some committee was set up to actually investigate and to see what is the effect of cannabis on humans. And after that, उसके बाद थोड़ा अंकुश लगाया गया था, but then people were free to use it. In around 1921 और 1930, ओके, जो ओपियम वॉर्स वगैरह के बाद एक कमिटी बिठाई जाती है जिनेवा में to investigate about different forms of drugs, opium, this, that, etc. That brings Indian hemp on the map of the world with regards to some substance which can which you can call it as a narcotic substance. उधर तक ही 1930s तक कैनबीज और लॉ का संबंध आता है. होता ये है कि जॉन एफ कैनेडी जब प्रेसिडेंट थे यूएसए के, अराउंड 1960s में यूएन में एक प्रस्ताव रखा जाता है जहाँ पे जैसे एनडीपीएस है वहाँ पे जो भी न्यूरोटिक और जो भी ड्रग्स के रिलेटेड जो सब्सटेंसेस है उनके ऊपर एक रोक लगाई जाए. वो चर्चा काफ़ी देर तक चलती है. इन अराउंड 1971 एक मूवी आती है इंडिया में, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, समथिंग लाइक दैट, दम मारो दम, जिसमें गाना आता है और हेम्प फिर से पॉप कल्चर में इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में. एंड देन इन अराउंड 1985 हम लोग के यहाँ पे एनडीपीएस आता है विच इज़ इंस्पायर्ड बाय द, इंस्पायर्ड नहीं बोल सकते बिकॉज वी साइंड दैट यूएन ट्रीटी. इसके लिए हम फिर वो 1985 में अडैप्ट करते हैं. वेस्ट बैंड इट, we had to ban it, Yes. or else इंडिया के आपको उस टाइम पे शायद हर थोड़ी दूर के एक दुकान पर आपको भांग की दुकान मिल जाया करती थी. Yes. या कैनबिस बहुत फ्रीली अवेलेबल हुआ करता सो था. वी विल हैव टू लुक इनटू इट कि क्या हम लोगों ने यूएन के वजह प्रेशर में आके ये किया, क्या ये हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन था, डज इट अलाइन विद आवर सोसाइटी, विद आवर नॉर्म्स, कल्चर, दिस एटसेट्रा, और इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यूएन ट्रीटी. ऑल्सो एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें कि अगर ड्रग्स का ओवरडोज होता है तो हम सबको पता है दैट अ पर्सन कैन लूज हिज लाइफ. अल्कोहल के साथ भी हो सकता है. बिल्कुल सही. लेकिन अगर आप क्या हेम्प का कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन करते हो एक ही टाइम पे, इज दैट फेटल फॉर योर लाइफ? वी डोंट नो द आंसर. हैव वी डन एनी टेस्ट और एनीथिंग रिगार्डिंग दैट? वी डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट. सो ये सारी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो सब होनी चाहिए एंड वी शुड लुक इनटू इट अगेन. Because cannabis being a plant which has multiple uses, it has its medicinal use, it has its agricultural use, it has its FMCG use. हेम्प के कपड़े बन रहे हैं, हेम्प के फैब्रिक बन रहे हैं, हेम्प के फर्नीचर्स बन रहे हैं, उस एक पौधे से दवाइयाँ बन रही हैं, कैंसर से लड़ने की दवाइयाँ तक उसमें मौजूद हैं. ये टेस्ट्स इस पे अगर हों तो और इसका पुष्टिकरण किया जा सकता है, पर उसके रिक्रिएशनल यूज के कारण उसके ये बाकी सारे एडवांटेजेस जो हैं उसको नजरअंदाज किया जा रहा है. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट फैक्टर दैट somebody needs to look into. I think we should also look into the fact that even if the government regulizes this, okay, if they allow us to use it, अगर फिर भी अगर सोसाइटी में कैनबिस को लेके एक मॉरल स्टैंस है, तो अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो हेम्प को लेकर एंड इफ पीपल आर सेइंग दैट इट इज मॉरली इनकरेक्ट, द लॉ विल आल्सो नॉट हेल्प यू. दीपादना, in the day and age of social media, आर्टिस्ट्स अपना सारा का सारा काम जो है, अपना आर्ट है, भले ही वो पोएट्री हो, आपके गाने हो, फिल्म्स हो, आइडिएशंस हो, वो सब सोशल मीडिया पर डालते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं. उम्मीद करते हैं कि उनको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, पर कुछ समय बाद जब वो अपना ही काम किसी और के काम में देखते हैं और उसका उन्हें कोई राइट नहीं मिलता, उन्हें कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, तो उस आर्टिस्ट के पास क्या कोई उपाय है?
अगर आप कोई लिटरेचर में या कोई भी आर्टिस्टिक वर्क बनाते हो, एज सुन एज इट इज़ पब्लिश आपको उसका कॉपीराइट मिल जाता है, सो टू से, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे पब्लिश नहीं कर रहे हो कहीं पे, इट इज़ नॉट अ रिटन वर्क, तो आपको जाके उसका रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट हेल्प्स योर केस, ओके। बट आई थिंक इसमें जो सबसे बड़ी आपत्ति जिसको आई है, या जिस सबसे बड़ा हम लोग का ये जो विक्टिम्स जो है इस पूरे सिस्टम में, वो है फोक आर्टिस्ट। बिल्कुल। ठीक है। एक बहुत ही फेमस गाना आया था, बोरो लोको बीटी चोर लंबा लंबा चूल, ओके। वो एक बंगाल में किसी फोक आर्टिस्ट ने बहुत सालों पहले वो बनाया था, फिर वो किसी ने कॉपी किया, फिर होते 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 वो बॉलीवुड में आया, ना ही उनको क्रेडिट दिया गया उस गाने के लिए, कुछ नहीं हुआ उस केस का। तो जो आर्टिस्ट है, जो ओरल हिस्ट्री थ्रू फोक आर्ट आ रहा है, उससे कैसे हम कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Oh, this is a topic I'd like to tap upon a little more also. यस, अभी रिसेंटली याया बूटवाला करके एक आर्टिस्ट हैं, यस। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर बताया कि उनकी ही एक कविता को पिकअप करके एक फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। याया एक जाने माने कलाकार हैं, उनकी आवाज पहुंची लोगों तक के और उनको 2 से 3 दिन के अंदर जस्टिस मिला। शायद कंपनी ने उनको, फिल्म मेकिंग कंपनी ने उन्हें कॉन्टैक्ट किया क्योंकि उनका अगला पोस्ट था कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ये याया कर सकते हैं, शायद उनकी किस्मत में था कि उन्हें वो मिल गया। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो जिनको शायद ये मौका नहीं मिलता, जिनका काम इस्तेमाल हो जाता है एंड यस। दे वो गुमनामी में ही रह जाते हुँ। हैं हमेशा, और कई बार डिप्रेशन में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये काम उसका था। देयर इज़ इस नो वे हुँ। अनटिल एंड अनलेस मैं आवाज़ उठाऊँ कोई नहीं, मुझे पर मुझे जस्टिस ऐसा मिलेगा। लगता है कि आर्टिस्टिक कम्युनिटी शुड बी मोर सेंसिटिव, जैसे हमने पहले भी पॉडकास्ट में बोला गया है कि आर्टिस्टिक कम्युनिटी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक फ्रेटर्निटी में ही एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड, अ सेंस ऑफ यू नो व्हाटएवर दैट यू कॉल्ड इट, एक आप ऐसा निर्माण करो कि आप एक दूसरे की हेल्प करके चलो। अगर एक आर्टिस्ट होकर ही अगर एक दूसरे आर्टिस्ट के अगर आप पेट पे पैर मार रहे हो, टू से इन लेमन्स टर्म, तो फिर क्या फ़ायदा है आपका आर्टिस्ट होके भी? एब्सोल्युटली, अपने गिरेबान में झाँक के देखने के लिए कह दिया आपने हम यस। सबको। थैंक यू वेरी मच। हर थैंक बार यू। वकीलों पर उँगली नहीं उठाई जा सकती, हमेशा सिस्टम पे उँगली नहीं उठाई जा सकती। जब आप यस। उँगली उठाते हैं तो 3 उँगलियाँ आपकी तरफ ही रहती हैं, और ये समाज को समझना बहुत ज़रूरी है कि कानून एक हद तक आपकी मदद करने के लिए है, बट दैट डज़ नॉट गिव यू द राइट टू गो अहेड, बेंड एंड ट्विस्ट द लॉज़ एंड यूज़ इट फॉर योर ओन बेनिफिट। हुँ। Last a couple of questions only to you. Have you ever, what's with this term, the devil's advocate? How do you react to a term like that? आई डोंट नो Why डेविल do और they call एंजल्स। lawyers a devil's advocate? क्यों करते हैं ऐसा वकीलों के साथ ये? I don't know, call it a devil's advocate or angel's advocate. We are just duty bound. And there is a term that we use, or the sentence that we use in judiciary, is that we are the agents of the court. Okay. Wow. So our duty is to, be truthful, to put forward all the facts, to not conceal anything from the court. Okay, just because my client has done something right or wrong, I won't say, but it is my duty to put forward the whole truth and then convince the court as to why this truth is correct. Wow. Because हर सिचुएशन में आते हैं तो दो ही सिचुएशन है, एक सच है और गलत है। Yes. पर अगर आप गलत की तरफ से वकालत कर रही हैं तो where does that where does the morality stand over there? आई थिंक हर बार ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन नहीं होती है, कई बार देर आर वेरी मच ग्रे एरियाज, इसीलिए हम कोर्ट में जाते हैं टू टेल पीपल वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग एंड वेयर वी हैव नॉट गॉन रॉन्ग एट्सेट्रा। एंड मोरालिटी की बात नहीं है, आई थिंक एज अ लॉयर इट इज़ आर ड्यूटी टू zealously represent our client, okay, and to put forward the best case forward for my client to work in his or her interest. अगर मैं मोरालिटी पे आ जाऊँ और अगर मैं दूसरी पार्टी के तरफ से कुछ करने लग जाऊँ, मतलब उनके टू पुट माई सेल्फ इन देयर शूज, देन फिर मेरे क्लाइंट को जस्टिस कौन देगा? You have made यस। yourself a wonderful lawyer with everything that you've said. You can clearly on your way to a wonderful, wonderful career ahead. थैंक Thank यू you वेरी very मच। much for being with us on What's Your Mantra. थैंक यू वेरी मच मंत्रा। थैंक यू।